Good morning, class. We are going to start chapter number 16, environmental issues. This is the last chapter of your last unit in class 12th biology syllabus, that is ecology and environment. So it is a very much concern nowadays that what is pollution, why there is pollution, who are responsible for pollution, how to control the pollution. So it's a burning issue, students, and it is very important topic, not from only the point of view of your board examination but also from your competitive examinations, various competitive examination, because at least one or two questions are there in most of competitive examination from environmental issues. So we will be covering it into 3-4 short videos. So first we are going to start the topic, and it is today's topic is introduction to the chapter and air pollution and its control. So first thing is that what is pollution? Pollution, any undesirable change in natural components of is known as pollution. Now pay attention here. If you are going to define any type of pollution, you have to write this definition: any undesirable change in natural components of, suppose we are going to discuss air pollution, then it is known as undesirable change in natural component of air is known as air pollution. If you are going to discuss it about water, then it is water pollution. Soil pollution. So it is the single definition which you can learn and you can understand. Means any undesirable change. Reasons are different, maybe human beings or maybe any other, but in most of the cases humans are responsible for any type of undesirable change in natural components of air, water, soil. So it is known as air pollution or water pollution or soil pollution. Now pollutants. Matter or material responsible for matter or material responsible for undesirable changes in natural components are known as pollutants. Now one more question, it is generally there, that what is Environment Protection Act? In India, one act was passed in 1981, implemented in 1986, and it was amended in 1987. 1987 में इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ? अमेंडमेंट मीन्स इसमें कोई इंप्रूवमेंट, कोई चेंज, कोई क्लॉज इसमें जोड़ा गया. तो पहले इसमें ऐसा था कि एनवायरनमेंट में नॉइज को एक पोल्यूटेंट नहीं माना गया था, बट in 1987 to include noise as an air pollutant, it was considered. And in India it is believed that the sound which is measured in decibel, small d capital B, so a noise, a sound which is
150 डेसिबल और मोर देन 150 डेसिबल इज अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। इन सिटीज क्या होता है बच्चों, शहरों में जो लोग रहते हैं वहां पर अगर ज्यादा नॉइज है, या जो माइंस में काम करते हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर हैवी मशीनरी वर्क करती है, एंड ऑल टाइम मैक्सिमम टाइम देयर इज नॉइज, तो वहां पर क्या होता है कि हमेशा जो साउंड रहती है उस साउंड की वजह से उनको एक क्रॉनिक ये पोल्यूटेंट क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक मींस बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला, एंड इट मे कॉज परमानेंट डैमेज टू द ईयर ड्रम। इससे परमानेंटली ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन से और क्या प्रॉब्लम होती है हमें, नॉइज पोल्यूशन से हार्ट बीट बढ़ सकती है, स्लीपलीनेस आ सकती है कि नींद नहीं आना, एनेक्सिटी and several other disorders may be there. Now air pollution, you know that what is air? Air is that which is everywhere around us, and we are the human beings, living organism. We need every time to respire. हमें सांस लेने के लिए हमेशा गैस की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, लेकिन आजकल हमने सबसे ज्यादा पोल्यूट किया है किसी चीज को तो वो एयर और वाटर को किया है। इनमें से एयर का इसलिए ज्यादा हम ध्यान देंगे पहले क्योंकि इट इज द सीरियस कॉज ऑफ पोल्यूशन नाउअडेज इन द वर्ल्ड। तो इसमें हो क्या रहा है, एयर पोल्यूशन होने से हम इसको सांस में लेते हैं, ये हमारे लंग्स में जाती है, इसमें बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें गैसेस भी हैं, इसमें पार्टिकुलेट मैटर भी है जिनके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ये सब चीजें एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, स्पेशली एयर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को। तो देखिए अब इसका कंट्रोल कैसे करना है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेनली जो एयर पोल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। इट रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन पे भी इसका फर्क पड़ता है, एंड प्रीमैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। इट इज another serious cause due to air pollution की premature death of plants deleteriously affects the respiratory system of humans and other animals। humans को ही केवल नहीं बल्कि other animals के respiratory system को भी ये badly affect करती है। Now pollutants released from thermal power plant, smelters and other industries, they may be of two types. First, they may be particulate matter and they may be gaseous. Now, what is particulate matter? According to CPCB, Central Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, it is the governing body for pollution in India. According to CPCB, particulate matters are those small particles which have a size of 2.5 micrometer or less than 2.5 माइक्रोमीटर, दे कॉज सीरियस डैमेज टू आवर लंग्स। वो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं और वो लंग्स में उनको जो हमारी सीलियरी बॉडीज है, हमारे जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो चेक नहीं कर पाते हैं और वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पर सीरियस डैमेज कॉज करते हैं। इट मे बी एलर्जी, it may cause asthma, and even in severe cases these are the long life disease and disorders. Now how to control these? The particulate matters which are present in the exhaust of thermal power plants, they can be removed in 99% of amount by using electrostatic precipitator. This is important question, students. Please pay attention. It may be asked in your exam because it is frequently asked in board exams. What electrostatic precipitator and how they help. Electrostatic precipitator क्या है कि वो एक ऐसा सिस्टम है, सपोज यहाँ से एयर जा रही है, पोल्यूटेड एयर और डर्टी एयर, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ डर्टी एयर, तो यहाँ से ये एयर एंटर करती है और इसमें ये चिमनी है या ये पैसेज है एयर का जो ब्लैक मार्कर से लाइन किया गया है यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें ये पर्टिकुलेट मैटर है जो ब्लू कलर के डॉट्स है,
इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स में हाई वोल्टेज, सेवरल थाउजेंड वोल्ट का करंट होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक नेगेटिव चार्ज का कोरोना डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रोड, एंड इट इज द डिस्चार्ज कोरोना। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, ये कोरोना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहां पर इसकी एयर का जो फ्लो है वो स्लो रहना चाहिए। इसमें यहाँ मेटेलिक प्लेट्स लगी होती है, कलेक्शन प्लेट्स ग्राउंडेड, तो इसमें एयर का फ्लो कम है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर इस नेगेटिव चार्ज कोरोना के साथ इस पे सेटल्ड हो जाते हैं, और बाहर जो एयर जाती है उसमें 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये प्योर कर देता है। सो रीड इट एंड प्रैक्टिस टू ड्रॉ इट, डोंट फॉरगेट लेबलिंग। Another method is wet scrubbers. There are some pollutants in gaseous form like sulfur dioxide gas and other. इसमें होता क्या है, ये किस तरह का apparatus है, इसमें डर्टी एयर या पोल्यूटेड एयर जो है वो यहां से एंटर करती है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब यहां पर इसमें क्या करते हैं, यहां से इसमें या तो वाटर का स्प्रे होता रहता है या लाइम, वाटर में लाइम मिक्स कर देते हैं चूना, उसका स्प्रे होता है, तो वो इसके साथ रिएक्शन करके इस एयर को क्लीन कर देता है और वो सस्पेंड पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं वेट स्क्रबर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हमें इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ केस स्टडी controlling vehicular air pollution in Delhi. You know that Delhi is the national capital of India and it's a metro city and one of the most polluted city in world. ये हमारे लिए शर्म की बात भी है कि हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से आती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी केस स्टडी है, व्हीकल्स का पोल्यूशन इतना ज्यादा था दिल्ली में कि उससे पोल्यूशन का जो रेंज है वो बहुत हाई रहता था। तो दिल्ली में यूज किया गया कि जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, मशीनरी, बड़े इंजन वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उनको दिल्ली में एंट्री ना दी जाए, और दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो 10 ईयर से पुराने डीजल व्हीकल्स और 15 ईयर से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स नहीं चलेंगे वहां। और मोस्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर फिटेड विथ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू तो अच्छी है बट इट डजंट प्रोड्यूस कार्बन, तो ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करती है, धुआं नहीं निकलता है। तो इसको यूज करने से दिल्ली में एयर पोल्यूशन में काफी रिडक्शन आया। सो यू हैव टू स्टडी इट एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास फॉर another topic that is water pollution. Till the time, bye bye, read it and learn it.